अब बच्चों हम बात करेंगे पीरियडिक टेस्ट 2 दैट इज़ फॉर क्लास 5th। यहाँ पर पीरियडिक टेस्ट 2 का ये पेपर है क्लास 5th इंग्लिश का। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट इट इज़ ऑफ 90 मिनट्स। 90 मिनट का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या कॉम्पिटेंसीज इसमें? रीडिंग आपका 5 मार्क्स का है। उसके बाद राइटिंग में जो है प्रोज एंड पोएट्री अलग अलग 5 एंड 10 मार्क्स की। क्रिएटिव राइटिंग 10 मार्क्स का है। स्पेलिंग आपका 5 मार्क्स का है। हैंड राइटिंग हैव द 5 मार्क्स। टोटल इस तरह आपका 40 मार्क्स ये बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द रीडिंग सेक्शन। Once upon a time, Crane and a fox lived in a forest. They were good friends. One day, the fox invited the crane to the forest. He made tasty food and served it before the crane on a plate. The crane could not eat anything because of the long beak, but the fox licked all his food. The crane felt insulted. He decided to teach the fox a lesson. Next day, he invited the fox. He prepared the same tasty food and placed in front of the fox inside a narrow glass. The crane ate easily while the fox could not. Now it was the fox's turn to remain hungry. Read above passage and answer the question. Who were good friends? The crane and the fox. Crane and fox are good friends. Why did the crane feel insulted? The crane feel insulted because the crane was unable to eat the food. That's why the crane felt insulted. The crane served food in a narrow glass. The crane served food in a narrow glass. Find the opposite of wide. इसका opposite हो जाएगा that is narrow. The fox taught a lesson to the crane. No, it's false because cranes taught lesson to the fox. Answer the following question. अगला सेक्शन आते हैं that is writing. How did the seaside creatures, the lobster, etc. teaches Hari a lesson? Write in few lines. The creatures, the crab, lobster, pinched Hari a lot and turned him in black and blue. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. Why are the two children nobody's friends? Because they do not share their things. आप लिख सकते हैं they do not share their things. वो अपनी चीज़ें जो है शेयर नहीं करते थे. That's why they do not have any friends. Question number 3. Why do children go to school in topsy-turvy land? When do they go to school? They go to school in night. When they go to school in night. चलिए आगे चलते हैं. Grammar. Do as directed. Write the rhyming words of matter. Matter का हो जाएगा chatter. Night, right. ठीक है. 2 words ending with ls. LWS. Careless, helpless. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Students are singing loudly. Adverb में पीछे ly लगा होता है तो आप करेंगे loudly. आगे चलते हैं. I saw an angry man in the market. E part. Opposite word of using unimdis. तो ये हो जाएगा disobedient. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Rearrange the jumbled words. School, go to night by children. Children go to school by night. Children go to school by night. आगे चलते हैं. Underline the no word. There is nothing to do. तो ये पर no word ये है. Nothing is no word. Rasmi can't complete his homework in time because his handwriting is as slow as tortoise. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. यूज द वर्ड्स गिवन हियर टू कंप्लीट द फॉलोइंग. एज ब्रेव एज अ लायन, एज फास्ट एज अ चीता, एज बजी एज बी, एज शार्प एज नाइफ. ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. फिल अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. द बॉय वॉज एज स्लो एज tortoise. Her frog was as white as snow.
आगे चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। टू स्टोरीज गॉट मिक्स्ड अप फॉलोइंग सेंटेंसेस, मिक्स्ड अप फॉलोइंग सेंटेंसेस, सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। दो स्टोरीज हैं यहाँ पर, रिप वैन विंकल और गुलिवर्स ट्रैवल। इनमें से आपको सेंटेंसेस अलग अलग सेपरेट करने हैं कि कौन सा सेंटेंस किस स्टोरी का है। गुलिवर्स वॉज अ सेलर, ये गुलिवर्स ट्रैवल का है, तो मैं इसके लिए जी लिख देता हूँ। रिप वैन विंकल, ये रिप वैन विंकल का है। ही प्लेड विथ चिल्ड्रेन सो दे लव्ड हिम, रिप वैन विंकल का है। ही वेंट ऑन टू एक्सप्लोर द बैरन लैंड, ये जो है ये जो है गुलिवर्स ट्रैवल का है। हिज कंटेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ, ये रिप वैन विंकल का है, इसके लिए आर लिखेंगे। द फील्ड वॉज फुल ऑफ barely राइजिंग ऑफ 40 feet, ये गुलिवर्स ट्रैवल का है, इसके लिए जी लिखेंगे। ही कुड नॉट क्लाइंब अप फेंस बिकॉज वॉज 6 feet हाई, गुलिवर्स ट्रैवल का है। One day he walked to the highest part of the mountain, Rip Van Winkle. A giant farmer took him to his home, Gulliver's Travel. He slept there for 20 years, Rip Van Winkle. तो इस तरह आपको ये सेंटेंसेस जो सॉर्ट आउट करने थे कि कौन सा सेंटेंस किस स्टोरी का है। चलिए आगे चलते हैं। राइट अ पोम ऑफ योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक से आपको एक पोम यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इसी तरह राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताते हो, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है, कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, व्हाट्स हर नेम या व्हाट्स हिज और हर नेम, वो क्या करता है, कौन सी क्लास में है, ये इस तरह की क्वालिटीज़ आपको बताते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में यू हैव टू राइट द फ्यू सेंटेंसेस। चलिए आगे चलते हैं। स्पेलिंग क्विकली, ये स्पेलिंग करेक्ट है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी में ये यहाँ पर दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। डिस्कशन, DIS CUSSION, discussion. Dessert, a sweet dish taken after a meal that's called dessert, ये इस तरह आपको फिल कर सकते हैं। Wrinkle, M, barren, E, inhabited, इसमें होना चाहिए INHABITET, inhabited, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का आपका ये सेक्शन है जिसमें से आपको जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, आपको इस पैराग्राफ को बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था क्लास 5th इंग्लिश PT2। दैट्स इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।